Hi guys, welcome to Sharma's classes. I think this name is new for you. My name is Vivek Sharma. I'm an IT professional. और आप सभी को पता है कि ये लॉकडाउन डिस्टर्ब अस लॉट. बेसिकली हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा इफेक्टेड हुई है इस लॉकडाउन की वजह से. और ए पार्ट ऑफ इकोनॉमी आई से दैट हमारी एजुकेशन सिस्टम बहुत इफेक्ट हुआ है. हमारे यंगर्स स्टूडेंट्स स्कूल नहीं जा पा रहे हैं. दे आर नॉट गेटिंग ए प्रॉपर गाइड बाय गोइंग टू एनी पर्टिकुलर ट्यूटोरियल्स और एनी ऑफ द अदर प्लेटफॉर्म व्हिच इज वेरी हेल्पफुल. या बट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर ईच एंड एवरी पर्सन. So I was thinking like what to do in this lockdown. How can I contribute to an economy, or how can I contribute to any stuff which would be beneficial for our country? So I thought to make a YouTube channel specifically dedicated for the students, so that our education system will be strengthened and they'll excel in their particular stuff. So I'll be focusing on the class 10 NCERT, not NCERT, class 10 maths subject. So basically in my whole tutorial and in my whole lectures you would be seeing the videos related to maths only. A part of this there would be some special classes also that we'll talk about later in later part of the video. So but before initiation of any of the subject, you should be aware like how to proceed or how to study well. हमें ये पता होना चाहिए कि कैसे बेसिकली हमें पढ़ाई करनी है. और वो तभी पता चलता है जब हम एक राइट अप्रोच फॉलो करते हैं, राइट वे अप्रोच फॉलो करते हैं इन ऑर्डर टू गेट सक्सीड. सो बेसिकली यू नो लाइक देयर आर टू डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क्स. वन इज हार्ड वर्क एंड वन इज स्मार्ट वर्क. आई विल बी प्रेफरिंग दैट वी हैव टू डू बोथ एट द सेम टाइम. द सेम थिंग आई वुड बी डूइंग हियर आल्सो. आई विल बी सजेस्टिंग सम वेज व्हिच इज रिलेटेड टू हार्ड वर्क एंड सम वेज व्हिच इज रिलेटेड टू स्मार्ट वर्क. These two are very important in our life in order to excel in whatever way you want to excel in your whole future. Yeah guys, so to proceed further with the maths, I will be focusing on the class 10. If guys you will be liking my videos, I will be focusing other classes as well. So basically for the maths, I used to, मेरे को ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले द बुक विच वी फर्स्ट बिफोर टॉकिंग टू द सब्जेक्ट वी शुड नो व्हाट टू स्टडी एंड हाउ टू स्टडी दैट आई विल टेक लेटर. सो व्हाट टू स्टडी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दैट पार्ट आई विल बी सजेस्टिंग सम बुक्स फॉर यू. मैं आपको कुछ बुक्स बताऊंगा जो मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. और you can secure a good marks by understanding that all the concepts present in the book. So basically if I talk about the books, this whole part is dedicated to the book section only. So first basically we will be focusing on the NCERT. NCERT is very important. NCERT बहुत ही ज़्यादा मैं बच्चों में student I'll be telling that NCERT is very important. Without NCERT you cannot succeed in your board exams. So complete the NCERT as soon as possible with completing with all the examples and all the exercises. Once NCERT is completed, then you have to, there should be some book which you should refer. I'll be not suggesting any particular book. Each and every authors are very बहुत important authors हैं वो लोग, और we are nothing in front of them. But I used to like this R.S. Agarwal and R.D. Sharma a lot. So I'll be telling you in my further lecture how we will be proceeding with any particular chapter. And the main and important part is previous year papers. So मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अगर आपने NCERT कर भी ली, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल के कर भी लिए, लेकिन आपके पास टाइम नहीं और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स नहीं किए तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा. और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसे स्टडी करनी है, कौन से टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, which topics are more important, and you would not be able to get it. So this previous year papers as well as sample papers both are very important in order to excel any of the subject, and maths is very important. So basically how would I proceed further in my whole next lectures would be so for example अगर मैं पहला चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, अगर guys if I used to start my first lecture, and the first lecture is as you know the topic of the NCERT, our first lecture is real numbers. Yes guys, yes. So
after completion of a NCERT, all the problems and solutions, I try to get at least one or more than one or two videos for specifically preference questions. तो मैं क्या किया करूंगा, पहले मैं आपको एनसीईआरटी के सारे सॉल्यूशंस पढ़ाया करूंगा, सारे एक्सरसाइज कराया करूंगा, एक एक करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उनके कराया करूंगा. फिर उसके बाद जब हमारा एक चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद एक या दो लेक्चर मिनिमम, आई विल से मिनिमम नॉट ए मैक्सिमम, आर.एस. अग्रवाल और आर.डी. शर्मा के लिया करूंगा. बट स्टिल आई वुड से आपने अभी तक उस चैप्टर में यू आर नॉट प्रोफिशिएंट, यू आर नॉट ready to face board exam, because the major part is previous year papers. So after completing the first chapter, after completing each and every chapter, we would be focusing on the previous year papers. तो लास्ट 10 साल के जो पुराने पेपर्स होंगे, उन पेपर्स के हम कुछ स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट इंपॉर्टेंट, अच्छे क्वेश्चंस लगाया करेंगे, जिससे हमारा वो टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा, एंड इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू. So you would be gain the confidence, and it will boost your confidence, and the confidence अगर आपके अंदर है, तभी I think you can succeed in your life, and specifically in maths as well with the good marks. ठीक है? तो now I told you what to study, but how to study, this approach I'll be saying that it's a very important aspect in order to get excel. Okay? How to approach? So basically, जैसे मैंने आपको कहा कि अगर आप मेरे लेक्चर्स को फॉलो करेंगे तो आपको इस लेक्चर्स में बहुत अच्छे क्वेश्चन जरूर मिला करेंगे. अगर आप उनको देखेंगे, मैं आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, ये जो मैं आपको बुक सजेस्ट कर रहा हूं, मैं ये नहीं कहता आपको लेने की जरूरत है, मैं कहूंगा बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको इसके क्वेश्चंस खुद ही करा दिया करूंगा. तो जब एक हमारा एनसीईआरटी हो जाएगी, हमारी आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल हो जाएगी, प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर लग जाएंगे, ये तो वो हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क किया हुआ. How basically we will be going to do smart work. Smart work के लिए सबसे important topic, सबसे important concept है. I think this concept अगर आज आपने सीख लिया तो आपके whole life में important रहेगा. जितने भी educational, जितने भी competition, जितने भी classes इसके बाद अगर आप पढ़ने जाएंगे, वो अगर approach आपने follow करी, हर competition, हर classes, सब कुछ आपके लिए important aspect है. Try to make a short notes. I think guys this would be new for you, or some would be familiar with this topic. क्या होता क्या है short notes? So guys, so friends, short notes होता क्या है? हम क्या करते हैं? जैसे हमारा एक चैप्टर खत्म हुआ, you can see this is an advanced word. You can make a use of an applications. You can make a use of a math book. You can make a use of a small copies. हम तो कॉपी से पढ़े. So उन कॉपीज में आप क्या करें? जैसे चैप्टर रियल नंबर है, उसमें आप क्या करें, सबसे पहले इस चैप्टर रियल नंबर में जो इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ी, मींस इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पढ़े, उनके टॉपिक्स लिखिए. फर्स्ट थिंग तो आपको ये पता चले, ठीक है, क्या पता चले बात कहूंगा. तो सबसे पहले आप वो टॉपिक्स लिखिए. फॉर एग्जांपल रियल नंबर के जितने भी थ्योरम्स है, उन टॉपिक्स लिखिए. पहला पार्ट, दिस इज द फर्स्ट सेक्शन ऑफ योर स्मॉल नोट्स. द सेकंड सेक्शन वुड बी ट्राई टू राइट ऑल द फॉर्मूलाज ऑफ द टॉपिक्स. जितने भी फॉर्मूलाज है रियल नंबर्स में, जितने भी कॉन्सेप्ट है जिन्हें रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर बनाता है, वो सारे फॉर्मूले सारे कुछ लिख लीजिए. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर स्मॉल नोट्स. सो आई रिपीट अगेन, द फर्स्ट पार्ट वुड बी द टॉपिक व्हिच यू कवर्ड इन दिस. सिंपल, एक हेडलाइंस. आई थिंक यू ऑल आर अवेयर अबाउट हेडलाइंस इन इंग्लिश. या तो पहला ये करिए. सेकंड, फॉर्मूलेस लिखिए. थर्ड पार्ट होगा क्वेश्चंस लिखिए, जो क्वेश्चंस आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो क्वेश्चंस आप फेस करते हैं डिफिकल्टी, ना कि वो क्वेश्चंस लिखिए जो आपको आते हैं. फॉर एग्जांपल इन एक्सरसाइज 1.1 देयर इज अ 10th क्वेश्चन और 9th क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द सेकंड थिंग वो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो वो क्वेश्चन लिख दीजिए. क्वेश्चन 10 और 1.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन 12 और 1.2 एक्सरसाइज. ठीक है? तो ये बेसिकली अगर आप ये तीन चीज हर एक चैप्टर्स के लिए, हर एक चैप्टर्स खत्म होने के बाद इफ यू ट्राई टू फॉलो दिस ऑल थ्री एस्पेक्ट ऑफ स्मॉल नोट्स, अब इससे होगा क्या? ये होगा, फॉर एग्जांपल आज अगर बैठे तो आज जो भी XYZ डेट है आपकी, आज अगर आपने 10 दिन बाद ये चैप्टर खत्म कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर रियल नंबर अगर आप चैप्टर खत्म कर लेते हैं, फिर अगर आप इसके 4 महीने बाद अगर आप रिवीजन के समय में आते हैं और इफ यू ट्राई टू रिवाइज दिस ऑल द टॉपिक्स, अगर आप शॉर्ट नोट सबसे पहले पढ़ेंगे ना, दिस इज अ स्मार्ट नोट. एक स्मॉल जैसे इंडेक्स होता है ना हर एक बुक का, उसी तरह से वो स्मॉल नोट्स आपके लिए एक्ट करेगा. फर्स्ट सेक्शन आपको ये बताएगा कि इतनी थ्योरम्स है, अगर उसके प्रूफ्स है तो प्रूफ्स भी लिख सकते हैं. अगर लेंथी हो रहा है मैं कहूंगा ट्राई टू मेक शॉर्ट एंड कॉन्साइज. आई नॉट प्रेफर टू राइट एंड प्रूफ्स ऑफ इट.
फर्स्ट पार्ट ये हुआ, फर्स्ट पार्ट से आप ये सीखेंगे कौन सी थ्योरम है, सेकंड पार्ट से आप क्या सीखेंगे, एकदम फॉर्मूले रिवाइज हो जाएंगे. इट इज वन शॉट यू वुड बी रिमेंबर ऑल द फॉर्मूलाज. एक शॉट में ना कि पेज पलटने का समय ना वेस्ट करके, फिर इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग अ टाइम इन changing the pages, at a one shot you get to know how many how many formulas are important, which formulas are associated with which topic. ठीक है. And the third is questions. तो पता चल गया जितने, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको पता चला कि 10 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये 10 क्वेश्चन आप इसको सॉल्व करिए इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम. अगर आपने ये शॉर्ट नोट की अप्रोच नहीं फॉलो की थी, तो इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग आप क्या करते हैं, एक ही चैप्टर को फिर 2 दिन लगाते हैं, 5 दिन लगाते हैं, तो इट मींस आप सिर्फ बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं. इट्स हार्ड वर्क, राइट? इंस्टेड ऑफ दिस ट्राई टू मेक इट डू स्मार्ट वर्क. तो ये शॉर्ट नोट इज वेरी हेल्पफुल. मेरे लिए मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, और आई विल बी सजेस्टिंग टू ऑल यू गाइस, try to follow this approach. It would definitely excel your future. Yeah, so basically 2 aspects is totally covered now, what to do and how to do. Now in my whole this classes, yeah, so the name of the classes is Sharma's classes, because I thought my name is Vivek Sharma, so I thought to make a Sharma classes. ठीक है, और कुछ इसके पीछे थ्योरी नहीं है. ये दिस इज माय स्मॉल इनिशिएटिव. लॉकडाउन में हमारी सारी मेरी जितने भी सिस्टर्स हैं, जितने भी ब्रदर्स हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं रिस्पेक्टिव स्कूल्स में पढ़ते हैं, जितने भी होलो दिस पूरी दुनिया, पूरी इंडिया के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक छोटा सा इनिशिएटिव है मेरे द्वारा. दिस इज माय इनिशिएटिव, सो प्लीज ट्राई टू गेट इट एज मच यू कैन, एंड आई एम ओपन टू गेट योर कमेंट्स. प्लीज, दिस इज माय फर्स्ट अटेम्प्ट. मैं पहली बार वीडियो बना रहा हूँ, इनफैक्ट पहली बार यूट्यूब में वीडियो डालूंगा मैं. So basically, please help me by giving your suggestion, by giving your comments, and if you have any queries, I am always available. I'll slowly I'll give you my details as well, which will be helpful for you, so that we can make a live sessions on the topics whenever I get a time. Yeah, guys. So basically, how to do, what to do is done. Now the second aspect of the smart work is, once my whole math is done, अब आप जब रिवीजन के लिए बैठ रहे हैं, now when you are going to do a second attempt or in the first attempt as well, you can follow this approach is distribution of marks. हर एक टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, पहले तो सारे टॉपिक पढ़ने हैं. You should be have idea of each and every topic. There is no topic which is very less important. There is no topic very much important. But you have to be smart. अगर आप देखेंगे NCERT का पैटर्न देखेंगे, I'll be probably in the next video I'll be covering that. I'll be touching that aspect as well. कौन से टॉपिक किस चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट है. बट फॉर एग्जांपल मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपके 10 मेजर टॉपिक्स, फॉर एग्जांपल 8 टॉपिक्स हैं, so there would be distribution of marks each and every topics, right? So for example, if I go to different pages, different NCERT pattern, आपको ये पता चलेगा कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है. अगर आप देखेंगे ये प्रोबेबिलिटी, ये हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स आता है 15 मार्क्स. आई एम नॉट टेलिंग हर बार 15 मार्क्स का ही आएगा. मैं बताना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये 15 मार्क्स सबसे ज्यादा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं. तो आप जब सेकेंड बार रिवीजन करने जाएंगे तो क्या करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में रिवीजन करें. डिसेंडिंग ऑर्डर में टॉपिक्स को अच्छा करें. मतलब जो टॉपिक ज्यादा स्कोरिंग है उस टॉपिक पे अपनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपके लिए, तो उस टॉपिक को अच्छा करें अपने. उससे क्या होगा, जब आप डिक्रीजिंग से असेंडिंग ऑर्डर में जाएंगे, तो अगर आपने अपने 1 to 2 मंथ आपने इस पूरे अप्रोच में डाल दिए, और फॉर एग्जांपल एक तो टॉपिक रह गया जो बहुत ही लेस स्कोरिंग था, 2 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, एटलीस्ट यू हैव गेन 75 मार्क्स. ऐसे कॉन्फिडेंस, यू वुड बी हैविंग कॉन्फिडेंस, या मैंने 75 मार्क्स का मेरे अंदर है कॉन्फिडेंस, आई कैन. इससे क्या होगा, ये छोटी छोटी अप्रोच आपको अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हैं मैथ्स में. Maths is a subject where you can get 80 out of 80. I'll be giving my 120%, 250, 500%. You have also need to practice. क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, आपको प्रैक्टिस करनी है इसके लिए. तो अगर आप ये अप्रोच फॉलो करेंगे, शॉर्ट नोट्स का डिक्रीजिंग से असेंडिंग ऑर्डर पढ़ेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा आपको. यू हैव टू स्कोर ए गुड मार्क्स. सो बेसिकली गाइज, सो इन माई NCERT there are 15 chapters, and each and 15 chapters have respective exercises. So if I try to give some of the topics or some of the chapter names, starting from the first chapter, first number is real numbers, second is polynomials, third linear equation है, चौथा quadratic equation है,
5वां अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, 6वां ट्रायंगल, 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, सर्कल्स, सरफेस एरिया, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये टोटल 15 चैप्टर्स है। विल ट्राई टू कवर एज सून एज पॉसिबल एंड आई ट्राई टू गिव माय बेस्ट। छोटी छोटी ट्रिक्स दूंगा उसके साथ आपको मैं, कैसे कैलकुलेशन अपनी अच्छी करिए। वैदिक मैथमेटिक्स इज बेस्ट मैथमेटिक्स। आपको अगर मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स मैथ्स को बहुत बोर समझते हैं। बहुत सारे मैं स्टूडेंट से मिला हूँ, इवन मैं अपने कजन सिस्टर्स, कजन ब्रदर्स से बात करता हूँ, अपने सिस्टर से बात करता हूँ, इन सभी से जब भी मैं बात करता हूँ वो ये कहते हैं कि मैथ बहुत बोरिंग सब्जेक्ट है। मैं नहीं समझता मैथ बोरिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मैंने उसको बोर होने नहीं दिया। अगर आपको कोई और सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो आप कुछ रिलेट करते हैं। इफ यू ट्राई टू रिलेट द मैथ आल्सो विद द रियल वर्ल्ड, तो अगर आप वैदिक मैथमेटिक्स का अगर आपको नाम पता है, वैदिक मैथमेटिक्स एक बहुत अच्छी मैथमेटिक्स वे है जिससे आप अपनी कैलकुलेशंस बहुत फास्ट कर सकते हैं। और सी देखिए, कभी कभार क्या होता है ना, बच्चे ये कहते हैं कि यार पेपर बहुत बड़ा था, बहुत लेंथी था। मैं नहीं मानता लेंथी होता है पेपर। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है, इफ यू आर गुड इन कैलकुलेशंस, देन यू कैन सक्सीड इन मैथ्स। आप कभी अपनी लाइफ में ये नहीं बोलेंगे कि मैथ्स बहुत स्लो है, बहुत बड़ा पेपर है, ये सब चीज आप कभी नहीं बोलेंगे। आई थिंक हर एक टॉपिक के बाद एक छोटी छोटी ट्रिक्स दिया करूंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी, मल्टीप्लिकेशन कैसे फास्ट होता है, एडिशन कैसे फास्ट होता है। दिस ट्रिक विल बी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बेसिक जो अपने बोर्ड मास होता है, ये सब डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इफ यू आर गुड इन दिस यू विल बी एक्सेल गाइस। सो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको छोटी छोटी ट्रिक्स दिया करूंगा which will be beneficial for you for this 10th as well for your competitive exam. So guys, this whole topics will be covered by me as a Vivek Sharma, and if you see the second part of my board, this is the special classes. So this special classes will be conducted by one of my colleague Diksha Sharma. She would be giving a guest lecture. Again, she is also an IT professional. She is very much good in रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है आगे कॉम्पिटिशंस के लिए। आई थिंक मेरे बच्चों, आपको आई डोंट थिंक सो अगर आप 10th क्लास के बच्चों को पता भी होगा रीजनिंग क्या होता है, मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इनके टॉपिक चैप्टर्स की होती है, कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। बट ये रीजनिंग कॉम्पिटिशंस के लिए बहुत अच्छा है। जब आप 12th के बाद व्हेन यू विल सिट इन द कॉम्पिटिशन इन व्हाटएवर, किसी भी फील्ड में अगर आप जाते हैं, सो रीजनिंग स्किल्स आपके अंदर बहुत ज्यादा मेंटल एबिलिटीज को फोकस करता है। रीजनिंग बहुत सारे पजल्स होती हैं इसके अंदर, बहुत डिफरेंट वे होता है चीजों को सॉल्व करने का। तो रीजनिंग स्किल्स देखी जाती है हर एक सेक्टर में, बिकॉज एक पार्ट ऑफ योर एजुकेशन नॉलेज यू हैव टू बी मोर रियलिस्टिक। रीजनिंग आपको बताता है मैंने लगाया है इसको लॉजिकल किया जाएगा। और बेसिकली एप्टीट्यूड थिंग व्हिच इज लाइक मैथ्स और मैथ्स की जो टॉपिक कहते हैं 8 9 10 की जो बैच, वो सब एप्टीट्यूड में कवर की जाती है। बट इन द कॉम्पिटिशन एग्जाम दे यूज्ड टू टेल इट एज एन एप्टीट्यूड। Not only 9, 10th, I will be telling some of the topics comes with 11, 12 as well. So, but 8, 9, 10, 11, 12, these are the some chapters or some topics which are covered under the section of aptitude. So that would be so that Diksha would be covering. We'll back and forth. कभी वो करेगी cover है, कभी मैं. We'll try our best to give you with small tricks. So आपके लिए बहुत helpful होगी. A part of this, guys, मैं बस यही कहना चाहूँगा आपको. Stay safe, stay home. सैनिटाइजर यूज कीजिए जितना कर सकते हैं आप जब भी घर से बाहर जाएं। मैं तो कहूँगा बिल्कुल मत जाइए घर से बाहर, बट स्टिल घर के इंपॉर्टेंट काम के लिए घर से बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है आपको। सो गाइस प्लीज मैं आपको कहूँगा स्टे सेफ, ट्राई टू यूज सैनिटाइजर, मास्क यूज कीजिए और अपने और अपनी फैमिली को कोविड से बचाइए, बिकॉज लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइस। थैंक यू गाइस, बाय।